اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم کی 32ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سنگالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات کو مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس ہفتے میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات کی نشاندہی کرتا ہوں جن میں برکات اسم اعظم کو دیکھا گیا، مشاہدہ کیا گیا۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ بھی آ رہا ہے اور آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، 7186756987۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں برکات اسم اعظم کا 32واں پروگرام۔ قبل اس کے کہ آج کی دعائیں، وظائف اسم اعظم بتائے جائیں، سب سے پہلے یہ ملاحظہ فرما لیجیے، سن لیجیے، دیکھ لیجیے۔ ایک ہمارے دوست نے ہمیں کال کی 4 روز قبل، 4 یا 5 روز۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا شوگر کا لیول 500 کے قریب چلا گیا، 550 سے شوگر بڑھ چکی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ 1000 بار جنگ بدر کا اسم اعظم پڑھیں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111۔ اور میں بھی آپ کے لیے غروب سے پہلے 1000 بار وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ پڑھوں گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا شوگر کا لیول 550 سے گھٹ کر 100 ہو گیا۔ شوگر کے بیماروں کے لیے میں نے یہ عمل اور بھی آزما لیا ہے 2 اور لوگوں کے لیے، بلکہ 2 ایسے مریض جو سویر قسم کے بلڈ پریشر کے مریض تھے، انہوں نے بھی یہ آزمایا اور ان کو بھی افاقہ ہوا ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ برکات اسم اعظم کا 32واں پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال کر لیں، اور اگر گفتگو ہو رہی ہو تو ذرا سا صبر بھی کر لیا کریں کہ جملہ مکمل کر کے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا جائے۔ تو
آج ہماری 32ویں نشست میں، 32ویں قسط میں اسم اعظم کی جس برکت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا اسم اعظم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو دوران جنگ بدر اللہ کی طرف سے تحفتاً دیا تھا، جس کی وجہ سے شیر خدا نے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت و طاقت کے سبب جنگ بدر کو لمحوں میں فتح فرما لیا۔ شوگر کا علاج گویا آج سے دریافت ہو گیا ہے، 4-5 دن پہلے سے، اور آج اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ 1000 مرتبہ وعنت الوجوہ للحی القیوم پڑھے، شوگر لیول ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دبا کے میٹھا کھائیں، بے احتیاطی کریں، دوائی چھوڑ دیں۔ الاحتیاط سبیل النجات، یہ ہمارا 32واں پروگرام آج آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، خدا کی مہربانی اور عنایت سے یہ بہترین نعمت ہے جو اللہ کی ذات نے بہت عرصے کے بعد نصیب کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام، کیسے حمزہ؟ آپ کی دعا ہے۔ بغض اور حسد دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور حسد کے بارے میں تو احادیث ہے کہ الحسد کصدع الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی مانند ہے۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، جس کے نتیجے میں اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام سے، آدم کے جو دونوں بیٹے تھے، سگے بھائی نے سگے بھائی سے حسد کیا، اور حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یقیناً حسد کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حسد سے محفوظ رکھے۔ حسد کا روحانی علاج کرنا چاہیے۔ بغض عداوت کی وہ آخری منزل ہے کہ جس میں انسان جلتا بھنتا بھی رہتا ہے، سڑتا بھی رہتا ہے، اور ہڈن دشمنی رکھ کے انتقام لینا چاہتا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں بری روحانی بیماریاں ہیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ نہ حسد کرنا چاہیے، نہ بغض، اور نہ ہی پیاروں کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کر لیں جس سے لوگوں کو حسد اور بغض کرنا پڑے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، البتہ اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں، بغض سے، تو سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی، اور درود شریف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ خدا حافظ و ناصر، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ حمزہ نے ہمیں کال کی ہے، یہ آلموسٹ ہمارے پرماننٹ کالر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں 718-675-69
87 पर आप शामिल हो सकते हैं आज के प्रोग्राम में, जो बरक़ात इस्म आज़म नंबर 32 है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मौलाना साहब मोहम्मद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ। जी कैसे हैं सरकार? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैंने एक दफ़ा शुगर के मुतल्लिक आपसे दरियाफ्त किया था, तो आपने मुझे एक कुरान पाक की आयत बताया था। जी जी मुदखला सिद्किन वाखरिजनी मुखरजा सिद्किन सुल्तान नसीरा। जी 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 तो अल्लाह की मेहरबानी से यानी 131 पे आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये वजीफा बताया और इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर डाउन हो गई है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही मालूमाती और यूज़फुल है। बहुत मेहरबानी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत अता फरमाए। आपने बड़ी इनकरेजमेंट आज हमारी की है ये बताकर कि रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुबह 3 बजे, शब को 3 बजे पढ़ने के बाद पानी पे दम कर लें। सुबह भी पानी पिए, शब को भी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे शुगर कम हो जाती है। और मोहम्मद इकबाल साहब हमें टेक्सास से कॉल फरमा रहे हैं और ये हमें खुशखबरी बता रहे हैं कि इनकी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह डिक्रीज़ होके 131 पे आ गई है। आज हमें गोया ये हमारा पुराना नुस्खा था जिससे बिहम्दिल्लाह शुगर 131 पे आई, और 4-5 दिन पहले हमने एक नया नुस्खा आजमाया। मोहम्मद इकबाल साहब को भी, दीगर लोगों को भी बताएंगे। वानतल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, जिससे 450 पर जो शुगर थी वो बिहम्दिल्लाह विद इन 8 to 10 आवर्स अल्लाह के फजल करम से 100 पे आ गई। तो गोया 2 इलाज इस वक्त हमारे पास शुगर के हैं। एक इलाज अभी जो मोहम्मद इकबाल साहब ने फरमाया कि रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इस आयत को आप पढ़ते रहें, सुबह के वक्त 3 बार, शब के वक्त भी 3 बार। अल्लाह ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शुगर कम कर देगा। और वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, इसे आप पढ़ते रहें। अल्लाह के फजल करम से इससे शुगर बहुत कम हो जाएगी। और हमारे एक दोस्त ने, बेचारों ने ये बताया कि उन्होंने अपनी बेगम साहिबा से कहा कि मुझे लगता है कि मैं कोमे में चला जाऊंगा, और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की और विद इन 8 to 10 आवर्स अल्लाह की ज़ात ने उनकी शुगर 100 पर पहुंचा दी। बिहम्दिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह के सच्चे नबी और उनके सच्चे अहले बैत के बताए हुए नुस्खे आज हम लोगों को बता रहे हैं, और बिहम्दिल्लाह फ़वाइद हो रहे हैं। जिनको फ़ायदा हो रहा है वो हमारे लिए भी दुआ फरमाएं और हम उनके लिए दुआ गो है। बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आपने मुलाज़ा फरमाया कि मोहम्मद इकबाल साहब ने हमें ये अच्छी खबर दी है कि एक प्रोग्राम में उन्हें हमने बताया था, और इसी नुस्खे को इस्तेमाल करके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शुगर सेट कर ली है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये जारी व सारी है, और हम चाहते हैं कि आप हज़रात व ख़वातीन इसमें शामिल हो जाएं। ये बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम है, अल महदी टीवी से 32वां प्रोग्राम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। जी कैसी हैं? जैसे कोई पढ़ाई करता है चीजों से जो लोग आप ये बताएं कि
पहले से कम हुई हैं वो आवाजें या पहले की तरह अभी भी बाकी हैं? 4 दिन कम थी, लेकिन अब फिर ज्यादा तेजी से आना शुरू हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका कौन बोल रही? हुमैरा बात कर रही हूँ मैरीलैंड से। हुमैरा मैरीलैंड से, ठीक है। तो हुमैरा हमारे साथ हैं इस वक्त मैरीलैंड से। ये कह रही हैं कि उनके घर में काफ़ी आवाज़ें आती हैं। मैंने उनको एक नुस्खा बताया था, एक तो सूरह इखलास की तिलावत है, तो आपको बताया था ना पहले। जी जी, हाँ, तो उससे आवाज़ें कम हुई है ना? कम हुई थी। जी जी, ठीक, कम हुई थी, दोबारा हो गई है। तो इसमें रिश्तेदारों को चाहिए कि वो बच्चियों को या बीवियों को तंग करने के लिए मुसलसल गंदे अमलियात न करवाएं और न करें। जैसे बाज़ औक़ात ये होता है कि मुश्किल हल हो जाती है और फिर दोबारा मुश्किल शुरू हो जाती है। मैं आपको आज एक नुस्खा बता रहा हूँ। आप डेली आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, चारों कुल 11 मरतबा और 11 मरतबा ही दुरूद पढ़ के सोया करें, इंशाल्लाह आवाज़ें बंद हो जाएंगी। मज़ीद भी मैं दुआ करूँगा। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने हमें कॉल की मैरीलैंड से। अल्लाह ताला करे आपको इस मुसीबत से निजात मिल जाए। खुदा हाफिज़। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप हमें कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पर। ये प्रोग्राम बरकात इस्म आज़म नंबर 32 आज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप अपने दोस्त अहबाब को भी बता सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है और आज के बाद जो भी लाइव प्रोग्राम होगा उस पर ऊपर LIVE लिखा हुआ आएगा और इंशाअल्लाह जो रिपीट होगा उस पर या तो रिपीट लिखा हुआ आएगा या उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर ऊपर की साइड पर, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर लाइव लिखा हुआ हो तो आप समझिए कि ये लाइव प्रोग्राम है। आज ही हमारे एक भाई ने शिकायत की है कि अंदाज़ा नहीं होता कि प्रोग्राम लाइव है या रिकॉर्डेड है। आज के बाद इंशाल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हदिया ज़ारा बोल रही हूँ। जी आप खैरियत से? मेरा ये सवाल है कि ये जो लोग कहते हैं कि किसी पर जिन या भूत का असर है, क्या ये सच है या फिर झूठ है? और अगर ये सच है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। हदिया ज़ारा हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं। ये हमारी परमानेंट कॉलर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हदिया ज़ारा, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों पर जिन का असर होता है। भूत कोई चीज़ नहीं, वही जिन भूत कह दिया जाता है। भूत या देव ये कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ जिन होता है या शैतान होता है। जिनका असर होता है उन लोगों पर जो नापाक रहे, बदबूदार रहे, जो लोग मुसलसल कुरान और नमाज का ख्याल नहीं रखते, जो लोग शावर नहीं लेते, उन लोगों पर उमूमन जिनका असर होता है। अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि उसके बगैर भी असर हो जाता है। जिन कब्ज़ा कर लेते हैं और जिन तंग करते हैं। अजीब इत्तेफाक ये है कि इसी वीक, ये कल की बात है, कल हमारी एक जानने वाली बहन की बेटी जो कि डॉक्टर है, डॉक्टर बन चुकी हैं, उनके ऊपर एक अजीब दौरा पड़ा। पहले भी उनको दौरा था, हमने इलाज किया था। तो वो बहन कल हमारे पास सेंटर में तशरीफ़ लाई थी। तो उनकी बेटी घर पे थी और वो शौहर के साथ बड़ी लड़ाई कर रही थी। तो बिहम्दिल्लाह हमने कल उनके लिए पढ़ाई की। आज तकरीबन 5:20 पे उन सिस्टर की कॉल आई कि बिहम्दिल्लाह वो जिनका असर उस बेटी से ख़त्म हो गया। अगर जिनका असर हो तो उसका असर तोड़ने के लिए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, नादे अली, चारों कुल, सूरह यासीन। अगर रूटीन की सूरह यासीन से न जाए जिन
तो सूरत यासीन बतरीक़ा मगरिबी पढ़ सकते हैं। और एक और अमल जो मैंने अपनी किताब बरकात इसमें आज़म में पहले एडिशन में एंड में लिखा था, वो है अस्माए जबरूत। अस्माए जबरूत है अल्लाह ताला के पाक नाम है जिनको अस्माए जबरूत कहा जाता है। या नूरो, या अजीज़ो, या जलीलो, या वाहिदो, या फ़र्दो, या जमीलो, या अजीमो, या कबीरो, या करीमो, या कदीरो, या जब्बारो, या कहारो, या मलिको, या कुदूसो, या रब्बे, या रहीमो, या वहाबो, या मन्नानो, या हकीमो, या मजीदो, या हन्नानो, या हमीदो, या हलीमो, या कदीमो, या शहीदो, या करीबो, या नसीर, या शकूरो, या सत्तारो, या खालिको, या रज़ाको, या फ़त्ताहो, या अलीमो, या रफ़ीओ, या हाफिज़ो, या सलामो, या वासिलो, या फ़ाइलो, या फ़ारिदो, या समीओ, या सामिओ। और उसके बाद आगे है या नूर तनवर तब नूर व नूर फ़ी नूर नूर, या नूर, या अज़ीज़ तअज़्ज़र तबिल इज़्ज़त, या अज़ीज़ तअज़्ज़ज़ तबिल इज़्ज़त इला आखिर। इसको कहते हैं अस्माए जबरूत। इसकी अगर 120 मरतबा, 142 मरतबा अगर इसकी तिलावत कर ले तो जिन भाग जाता है। जो हजरात व ख़वातीन ये महसूस करें उन पर या उनके बच्चों पे जिन के असरात हैं, फिज़िकली मरीज़ को आमिल के पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूर से भी, 7 समंदर पार से भी आमिल अगर बाअमल है, बाकिरदार है और पहुंचा हुआ है तो एक लम्हे में जिन को हटा सकता है। बहुत शुक्रिया हदिया ज़हरा, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह हदिया ज़हरा ने हमें सवाल किया और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। आप अपने बच्चों को भी इनकरेज करें कि वो ये प्रोग्राम देखें। इन प्रोग्राम से तक़वा में, ज़ुहद में, परहेज़गारी में, नमाजी बनने में, सच्चा होने में, दीन के करीब होने में, कुरान पढ़ने में मुआवनत होती है, मदद मिलती है। बजाय इसके कि बच्चे अपना वक्त ज़ाया करते रहें, उनसे कहें कि वो इस किस्म के मजहबी प्रोग्राम देखें। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो तो इंशाल्लाह हम बच्चों के लिए इंग्लिश में भी यही प्रोग्राम हम कर सकते हैं जैसा कि उर्दू में किया जा रहा है। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर बरकात इसमें आज़म का 32वां प्रोग्राम जारी व सारी रहेगा। 8:30 बजे तक आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। फिर कल आपकी खिदमत में हम इंशाअल्लाह 7:30 बजे दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जनाब? जी कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सैयद सफीर हैदर जी कनाडा कैलगरी से बोल रहा हूँ। सैयद सफीर हैदर साहब जी ठीक, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं शाह साहब? जी दुआएं आपकी जनाब। मेरे लिए कोई अमल बताएं। मेरी प्रॉपर्टी है गुजरात शहर में, वो प्लाजा है कोई 8-10 करोड़ का, उसको सेल करके तो इस 40वें पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐद करके आया था कि मैं एक दर्स बनाऊंगा। तो उसके बेचने में मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, प्लीज अगर वो कोई आप बता दो तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा है सैयद। मेरे घर में ठहरते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। सैयद सफीर हैदर शाह साहब इस वक्त लाइन पे हैं कैलगरी कनाडा से, और ये पूछ रहे हैं कि ये प्लाजा बेचकर मदरसा बनाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कोई ऐसा अमल हमें बता दिया जाए। मैं शाह साहब आपको एक अल्लाह का ख़जाना बता रहा हूँ। सूरह हज की 8 आयतें हैं। आयत नंबर 56 से लेकर आयत नंबर 63 तक नोट कर लीजिए। बाकी भी हजरात व ख़वातीन सैयद सफ़ीर हैदर शाह साहब के ज़रिए ये नोट कर लें कि सूरह हज की आयत नंबर 56 से लेकर 63 तक नोट कर लिया शाह साहब? आप जरा अपने टीवी की आवाज को कम कर दें।
क्या साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं अर्ज कर रहा हूं, सूरह हज की आयतें 56 से 63 तक अगर आप पढ़ें, इनमें जो टोटल अल्फाज 124 बनते हैं, जो 1,24,000 अंबिया की तरफ इशारा है। इन आयात को अगर एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला ऐसी मुश्किल को हल कर देता है जिस मुश्किल से शाह साहब दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, मैं नज़ीर साहब बात कर रही हूँ। एक बार आपने एक अमल बताया था जिससे आपकी ऐनक उतर गई थी। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। जी, मेरे अंकल को भी ऐनक लगी हुई है। आप कुछ ऐसा, आप वो अमल दोबारा रिपीट कर दें ताकि मेरे अंकल की ऐनक उतर जाए। ठीक है। आप हदिया ज़हरा बोल रही? नहीं, मैं वजीहा ज़हरा बोल रही। कौन बोल रही? वजीहा ज़हरा। मदिया? जी। ठीक है। आपके अंकल की ऐनक उतारने का अमल यह है कि वो डेली बिला नागा 50 आयतें पढ़े। इंशाअल्लाहुल अजीज मेरी करीब की तो ऐनक उतर चुकी है, दुआ करें मेरे लिए कि दूर की ऐनक भी मेरी उतर जाए। 50 आयतें डेली पढ़ें और या बसीरो चलते फिरते पढ़ते रहें, इंशाअल्लाहुल अजीज ऐनक उतर जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये जैसे मैंने अर्ज किया है कि आयत नंबर 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ये 8 आयतें हैं सूरह हज की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, रमीज बात कर रहा हूँ। रमीज? जी जी। कैसे रमीज? ठीक है, बस बिल्कुल ठीक। आपने जो मुझे दुआएं बताई थी, मैंने बिल्कुल उनके ऊपर अमल किया है और इंशाल्लाह इस हफ्ते कोई और नया जो है कारोबार भी खुला जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप मेरा सवाल ये था कारोबार के सिलसिले में जी। अब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इसको सस्टेन रखने के लिए कोई ऐसा कोई अमल या कोई दुआ बताएं जिससे मतलब कि मैं हर जगह इसको जो है ना पूरा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमीज, आपने हमें कॉल की। रमीज ने कॉल की है और ये बता रहे हैं कि जो दुआएं हमने इनको बताई थी उनकी वजह से अल्लाह की ज़ात ने इन पर मेहरबानी फरमाई है। इनका एक बिज़नेस था, अब माशाल्लाह इनके 2 बिज़नेस हो गए। दूसरा बिज़नेस भी अल्लाह ने इनको दे दिया है और वो इसी हफ्ते में शुरू हो रहा है। तो आप भी वो दुआएं मुझसे हासिल कर सकते हैं जो रमीज़ को मैंने बताई हैं। अलबत्ता रमीज़ कहते हैं कि सस्टेन रखने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए कि इसमें नुकसान ना हो बिज़नेस में, मैं आपको रमीज़ ये मशवरा दूंगा कि आप हमारे आगा सैयद सज्जाद अली शाह जाफरी जो आपके दोस्त भी हैं, आप उनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तावीज़ हासिल कर लें जिसमें 200 दुआएं मौजूद हैं। वो आप बल्कि 2 ले लें, दोनों बिजनेसेस में वो रख लें। अल्लाह के फजल करम से बिजनेस महफूज रहेगा। मैंने जिसको भी वो तावीज़ दिया है 1994 से अब तक अल्लाह की ज़ात ने उसके हालात बेहतर किए हैं। हादसात से हिफाजत के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, हुसूल रोज़गार के लिए, तिजारत में बरकत के लिए, चोरी डाके से महफूज होने के लिए वगैरह
बच्चों के गुमराह होने से बचने के लिए आजमाया गया है। उस तावीज़ के पहनते ही, तावीज़ रखते ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। वो तावीज़ आज ही आप हासिल कर लें। बहुत शुक्रिया रमीज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ये रमीज़ थे जो माशाल्लाह कामयाब हो गए। अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया है कि उनको एक बिज़नेस में ज़रा मुश्किल हो रही थी, अब अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उनको 2 बिजनेसेस दे दिए हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया, ये जो 8 आयात हैं, बल्कि ये 8 आयात बेसिकली बाइस बनी कि मैंने ये ज़ख़ीम किताब लिखी, ये तोहफ़े दरवेश। इस किताब के लिखने का असल हदफ ये 8 आयात थी। जिस दिन मुझे ये रिवायत मिली कि इन 8 आयात के पढ़ने से, जो कि ख़ज़ाना इलाही है, ये आयात बंद किस्मत खुल जाती है, तो मैंने इन 124 कलिमात की याद में 786 सफ़ात की किताब लिख दी। इन 8 आयतों में 40 नाम हैं अल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह, और हर एक इस्म के बदले में एक हिजाब हट जाता है। ये आयात बहुत बड़ा तोहफा है। अभी जो हदिया ज़हरा ने सवाल किया था, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन अमल है कि जिन और भूत के दफ़इये के लिए ये एक बेहतरीन अमल है जो इंसान खुद कर सकता है। आसान भी है। आयत नंबर 56 से लेकर 63 तक सूरह हज। रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, रंजो अलम ख़त्म होता है, हाकिम मेहरबान होता है, हाजत पूरी होती है, सफ़र के ख़तरात टलते हैं। ये 8 आयात ख़ज़ाना इलाही है। जिन्नात और शैतानों के शर से, शर हासदीन से इंसान महफूज होता है। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म नंबर 32 जारी व सारी है, और हमने महसूस किया है कि आज काफ़ी अरसे के बाद हमने प्रोग्राम किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉल्स आ रही हैं। आप ज़रा बाखबर करें। कल भी इंशाअल्लाह 7:30 हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपकी खिदमत में एक और वजीफ़ा हदियतन पेश करूँ, जब तक कोई कॉल नहीं आती। और वो अभी जो सवाल किया गया था जिन वगैरह के बारे में, दफ़इया है, जिन के लिए एक बेहतरीन अमल है। और वो ये कलिमात हैं, 1100 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं। या बदूहो अलीकन मलीका तलीका अंत तअलमु मा फी क़ुलूबिहिम। ये हिब्रो और अरबी दोनों का मिक्सचर है। फिर सुन लीजिए, या बदूहो अलीकन मलीका तलीका अंत तअलमु मा फी क़ुलूबिहिम। 1100 मरतबा अगर इस जुमले को पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल करम से जिन भाग जाता है। कुछ आबाब की तरफ से हमें कॉल्स आ रही हैं हमारे सेल फोन पे, और कुछ बेवगान यतीम बच्चे भी काले कर रहे हैं कि जिनको हमने अभी तक माहाना वजीफ़ा इरसाल नहीं किया। अगर कोई बहन भाई इसमें मदद फरमाना चाहें तो आप मुआवनत कर सकते हैं। सिस्टर अभी बार बार कॉल कर रही हैं, उनको एक $100 हम भेजते हैं हर महीने, और उनको इस महीने 200 चाहिए ताकि उनको दाखिले की फ़ीसें भी मिल जाएं बच्चों की। 6 बच्चे हैं उनके। तामुल करना चाहें तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अलैकुम सलाम। जनाब ये मियाँ के बच्चे हमारे मुसलमान क्यों मुर्तद होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसके बारे में कोई हमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू वेरी मच। ये सवाल फरमा रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि बच्चे, हमारे मुसलमानों के बच्चे क्यों गुमराह हो रहे हैं। ये पहली तो बात, मुर्तद क्यों हो रहे हैं, पहली तो बात ये है कि ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बच्चे हमारे गुमराह होंगे, यानी मुर्तद होंगे, नऊजुबिल्लाह। मैं यहाँ पर पहले एक वाक़या आपको बता दूं। एक निकाह पढ़ने में जा रहा था किसी स्टेट में, वहां मैंने, गर्मी बहुत थी, ये 2 साल पुराना वाक़या है। इसमें मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ ठंडा पानी, शरबत वगैरह पीना चाहिए, तो मैं एक आइसक्रीम की दुकान पे रुका। वहाँ आइसक्रीम की दुकान पे जब मैं रुका तो जो अंग्रेज़ लड़की काउंटर पे खड़ी थी, मैंने उससे मिल्क शेक लिया, जिसके अलज़ाहिर कोई $4.5 बनते थे शायद, या हो सकता है 3.5 हो। तो मैंने 5 का नोट दिया, तो उसने कहा कि हमारे बॉस ने ये कहा है इनसे पैसे ना लें। मैंने कहा आप अपने बॉस को भेजें, अपने बॉस को आप भेजें, तो देखते हैं कि आपका बॉस क्यों हमसे पैसे नहीं लेना चाहता। बॉस जब बाहर आया तो उसने कहा उर्दू में, हुजूर आप आज हमारी दुकान पे आए हैं, हमारे लिए बड़ी सआदत है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि आप हमारे एक आलिम हैं और हम आपको जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि क्या आप भी मुसलमान हैं? कुरान मजीद ये सामने है, और झूठ जिंदगी में कभी बोला नहीं, अल्लाह गवाह है और कुरान गवाह है कि मुझे उस जवान ने कहा कि मुसलमान थे। मैंने कहा आजकल क्या है? तो कहा आजकल हम कन्वर्ट हो चुके। तो ये जो भाई ने अभी सवाल किया है, किसी बिरादर मोमिन ने, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से कुछ शाज़ व नादिर बच्चे मुसलमानों के माँ बाप की गफलत की वजह से, बुरे माहौल की वजह से, मशकूक ग़िज़ाओं की वजह से, कमजोर ईमान के सबब इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो रहे हैं। बल्कि मुझे ये बताने में भी तकलीफ हो रही है, एक साहब जो एक मस्जिद में इमाम थे, मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरा सगा चचा जो जवानी में मजहबी तकरीरें करता था, वो मुर्तद हो गया। मुझे ये भी बताने में कोई बाक नहीं, तकलीफ जरूर है कि एक साहब जो बहुत खूबसूरत अंदाज में स्कॉलरली स्पीच देते हैं,
उनका अपना बेटा मुर्तद हो गया। एक साहब मुझे वाशिंगटन में मिले, मैंने जब उनसे पूछा कि आपका नाम मैंने ज़माने तालिब इल्मी में सुना था, कि आप बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, तो उन्होंने कहा कि अब एनीमोर हम आपके मजहब पर नहीं रहे। इसके अलावा मैं अगर आपसे ये कहूं कि कम से कम मैं 100 ऐसे जवानों को जानता हूं जो मुर्तद हो गए हैं, तो ये मुबालगा नहीं है। एम्बैरेसमेंट क्रिएट न करने की वजह से हम इन चीजों को छुपाते हैं। मगर भाई ने अब पूछा है तो मेरा फर्ज है बताना, ताकि मेरे भाई बहन गफलत ना करें। वो पेरेंट्स जो सारी जिंदगी दूसरों की दावतें उड़ाने में और दूसरों को खिलाने में लगे रहे, जो उम्र भर मूवीज देखने में लगे रहे, जिन्होंने ड्रामाज में वक्त दिया, जिन्होंने न कुरान पढ़ा, न नमाज पढ़ी, न मस्जिद गए, न मदरसा गए, न सेंटर गए, न इमाम बारगाह गए, उनके बच्चे यकीनन डिरेल होते हैं। सैटरडे स्कूल्स में, संडे स्कूल्स में सन्नाटा हो रहा है, मस्जिदें सुनसान हो रही हैं, मराकिज में उल्लू बोल रहे हैं, उलमाए दीन की मुखालफत की जा रही है, बाकिरदार उलमा को जलील और रुस्वा किया जा रहा है, और 2 नंबर के सो काल खुतबा को मिंबरों की जीनत बनाया जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुसलमान बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। मुर्तद भी नहीं हो रहे तो दहरिया हो रहे हैं, दहरिया नहीं हो रहे बेनमाज हो रहे, बेईमान हो रहे, बेदीन हो रहे, लामजहब हो रहे। ये जंग खतर है। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, अल महदी टीवी नस्ल बचाने के लिए एक बेहतरीन चैनल है। आप मदद फरमाइए। हमें अल्लाह गवाह है 1.5 साल हो गया है, इस महीने भी उधार उठाया। आप तमाम हमारे व्यूअर्स अगर ये हल्फन मुआवनत की सबील कर दे, हर हमारा देखने वाला हमारी मुआवनत करे, इंशाअल्लाह हम बेहतरीन तजर्बा रखते हैं नस्ल बचाने का, और हमने नस्लें बचाई हैं। अभी इसी थर्सडे को इमाम अल खोई इस्लामिक सेंटर न्यूयॉर्क में एक क्रिश्चियन लेडी को मैंने कलमा शहादत पढ़ाया, और जुमा के दिन मैंने ओवर द फोन अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोरिडा के एक क्रिश्चियन भाई को मुशर्रफ ब इस्लाम किया है। अल्लाह ने हमें इंग्लिश में, उर्दू में तजर्बा दिया है आपके बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का। आप हमें मौका दीजिए, इस चैनल को आप बहुत ज्यादा तामुन के साथ कामयाब बना दीजिए, ताकि मुझ फकीर को हर महीने उधार ना उठाना पड़े। कब तक उधार उठाएंगे और कहां से उधार वापस करेंगे? आप अगर स्पॉन्सर करना चाहें तो हमारा $5000 का खर्चा है, आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मेरी वो बेवा बहन बार बार मुझे कॉल कर रही है जिनके बच्चों को $200 की ज़रूरत है। कोई अहले खैर ये $200 दे दें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर देगा। हमारे यतीम खाना फंड में भी आप मदद फरमा सकते हैं। एक कॉल हम ले लेते हैं, फिर हमारा प्रोग्राम जारी हो सारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया, सलामत रहे। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेहरबानी। मैं सरवत बात कर रही हूँ वर्जीनिया से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज हो गया आपका? इस साल हम मुशर्रफ नहीं हो सके। अच्छा।
जी 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 अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, जो इलाही भी है ईद भी मुबारक करे। मेहरबानी। तो हज़रत साहब मेरे अभी तक मेरा काम नहीं ठीक हुआ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम बताएंगे। आपके हस्बैंड के लिए हमने दुआ की थी, कुछ बेहतरी हुई है या नहीं? माशाल्लाह। अभी इसकी 15 तारीख को ना, ये 15 अक्टूबर आ रही है, 15 अक्टूबर को उनकी डेट है, तो अल्लाह करे वो इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा बहन सरवत, इंशाल्लाह हो जाएगा। बहन सरवत हमारे साथ लाइन पे हैं, इन्होंने हमारे ज़िम्मे कुछ काम किए थे, एक काम इनका हो गया था, दूसरा काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह के फजल करम से आपका जो फिजिकली प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए भी हमने वजीफा किया इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अलमहदी टीवी के साथ तामुन फरमाती रहे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये बहन सरवत थी जो हमें कॉल कर रही थी। हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं, देखिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम हाजी करीम। I am, yes, alhamdulillah, I am doing live program on Al-Mahdi TV about spiritual healing. You want to add anything or do you want to ask anything about spiritual healing? This is program, live program on Al-Mahdi TV. Yes, okay. I will ask one thing, but I want to first tell you why I called, right? I'm calling everybody. I started out with the A's. I'm all the way down to the S's now. About we having a lunar eclipse tomorrow morning, and you know we got the namaz ayat to do, right? So I was just letting everybody know that we having a lunar eclipse on the east, and it's on the East Coast starting at about 4:15, 4:20 in the morning, right? So you might want to let people know that. Inshallah. Ahsan. Inshallah. Thank you very much. I called a whole lot of people. Now, a spiritual question is if when a person is doing salah and thoughts enter the mind, whether haram or halal, but the thoughts are something other than the concentration on Allah subhanahu wa ta'ala, what is a very good dua to help prevent that? Kareem, why don't you call on 718-675-6987. Mask number, Al-Mahdi Center's number. Here your voice is breaking. Yeah, the number of the center. Call Al-Mahdi Center number. Do you have Al-Mahdi Center's number? Somewhere, but I don't have. If you could just give it to me again, it'd be easy. 718-675 6987. Okay, just call. Okay. ये हमारे स्टूडेंट हैं हाजी करीम, जो हमारी हौज़ा क्लास जो ऑनलाइन होती है उसमें ये प्रेजेंस रखते हैं, फिजिकली यहाँ मौजूद होते हैं, अगरचे बहुत लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। एक दो कॉल ड्रॉप हो गई हैं, प्लीज़ दोबारा कॉल कर लें। अनदर 7 मिनट्स में हम ये प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे, सम अप करेंगे। आप प्लीज़ कोई कॉल करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। Yes, Kareem, this is a spiritual healing program. It is the 23rd number. Do you have anything to add or ask about spiritual healing? Yes, I do. Okay, go ahead. The question is, when making salat, and if you find your mind drifts off to other subjects and away from Allah subhanahu wa ta'ala, Yeah, very good question. Haji Kareem is asking that if you feel that your attention is diverting from Allah subhanahu wa ta'ala while you are performing the salah, the best way to keep your mind in the prayer is to keep attention on the translation of those communications of God and zikr which you are doing. If you keep thinking about the translation, or if you keep thinking about the day of judgment, then
your attention will never divert from Allah subhanahu wa ta'ala. Very nice question. Haji Kareem is a diverted brother, mashallah, and he is student of Al-Mahdi Seminary, Hawza Ilmiya, and I welcome him in this program. Thank you, Haji Kareem. We'll see you inshallah on Friday. Please come on Friday and Saturday. We will have Hawza class. Thank you. ये हाजी करीम थे हमारे हौज़ा इल्मिया के स्टूडेंट। हमारी कुछ बहनें हमारे पर्सनल फ़ोन पे कॉल कर रही हैं, तो अगर ये कॉल इस्तिखारे के लिए है तो इन बहन के लिए मैंने इस्तिखारा देख लिया था और इस्तिखारे का जवाब पॉजिटिव है, इस्तिखारा अच्छा है। ऑफ द लाइन फिर मुझसे बात कर लें। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा बरक़ात इस्म आज़म का 32वां प्रोग्राम करीब इख्तिताम है। आज हमें जो कॉल्स आई उनमें हमें हमज़ा ने कॉल की, हसद और बुग़्ज़ का इलाज पूछा। हमने उन्हें बता दिया है सूरतुल फलक, सूरतुल नास, आयतुल कुर्सी। मोहम्मद इकबाल साहब ने आज हमें अच्छी खबर दी कि उन्होंने हमारे बताए हुए नुस्खे पे अमल किया। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इस आयत को उन्होंने पढ़ा और अल्लाह की ज़ात ने उनको शुगर से नजात दी है। 131 में उनकी शुगर आ गई है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन आप फरमाए खैरियत से। बड़ी मेहरबानी बहन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। मैं आपको उनका नंबर बता दूंगा ऑफ द लाइन, आप खुद भेज दीजिएगा और अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। उनके यतीम बच्चों का दाखिले के लिए 100 चाहिए और 100 तो मैं उनको हर महीने भेजता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि इस महीने हमें 200 भेज दें। अल्लाह करीम आपदा बहन आपके रिज़्क़ माल में बरकत दे। मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब को भी, आपके दोनों फर्जंदान को भी ज़िंदा और सलामत रखे। आपको बहुत अल्लाह रिज़्क़ दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने मेहरबानी फरमाई है। जज़ाकुमुल्लाह। और कोई मेरे हुक्म हो बहन, हाजिर खिदमत। माशाल्लाह हमारी आपदा बहन बड़ी नेक बहन है, अल्लाह ने खुश रखे। हमेशा हमारे साथ तामुन भी फरमाती हैं। इन्होंने माशाल्लाह वो बहन के लिए खुदा शाहिद है कि मुझे 8 दिन से इन बहन की कॉल आ रही थी। मेरी अजीब सिचुएशन हो गई है कि ख़र्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं इनसे शर्मिंदा हो रहा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह आपदा बहन को जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी संभाल ली। मैंने कहा था कि अगर हमारे भाई बहनें जो अमेरिका में रहते हैं $1 भी हमारे यतीम खाने के लिए वक्फ़ कर दे और $1 हमारे टीवी के लिए वक्फ़ कर दे तो हमारे दोनों प्रोजेक्ट चल जाएंगे। मगर बदकिस्मती से अभी तक टोटल 2 आदमी हैं जो यतीम खाने के लिए $30 मंथली देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर, कैसे? मैं अभी अर्ज़ कर दूंगा। सैयद रिजवी साहब ने हमें कॉल की है वर्जीनिया से और फरमा रहे हैं कि उनके बेटे के सीने में जलन रहती है। मैं अभी आपकी खिदमत में इसका हल मैं अभी अर्ज़ कर दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं, आप वाच कर रहे हैं तो वाच करते रहिए, अभी मैं बता देता हूँ। सीने में जलन के लिए मैंने कुछ अरसा पहले अपने एक बिरादर मोमिन को बताया था अमल अपनी किताब तोहफ़े दरवेश से, और अल्लाह ने उनको मुकम्मल शिफा दी थी। देख रहा हूँ कि वही अमल मैं अभी इंशाअल्लाह इन भाई को इनके फ़र्जंद के लिए अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह खुदा उन्हें इनके बेटे को शिफा देगा। आप हमारी किताबें भी मंगवा सकते हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 किताबें अवेलेबल हैं, कशकौल सनराल और बरक़ात इस्म आज़म। $40 इनका हदिया है। और हमारी किताब सखावतुल्लाह बिहम्दिल्लाह 600 पेजेस तैयार हो चुके हैं, बल्कि 620 पेजेस, टोटल 786 पेजेस हैं।
इंशाअल्लाह 166 पेजेस भी तैयार हो जाएंगे जल्द, और वो किताब आ जाएगी। उसका हदिया भी 40,000 होगा। वो इंशाअल्लाह मुहर्रम तक बशर्ते ज़िंदगी छप जाएगी। हमारी जंतरी इस वक्त प्रेस में छप रही है, $5 उसका हदिया है। साल भर के उसमें दिनों के तफसील लिखी है, नमाज के औकात भी लिखे हैं। आप हमें $5 उसका सिर्फ $5 बेचकर आप मेहरबानी फरमा सकते हैं। ये दुआ मुझे मिल गई है, सफ़ा नंबर 415 पर मैंने इस दुआ को लिखा है। सीने में जलन के लिए जो दुआ मुजर्रब है वो 114 मरतबा 7 दिन मुसलसल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की तिलावत फरमाएं, यानी दुरूद पढ़ें 114 मरतबा 7 दिन। अल्लाह करीम आपके फर्जंद को सीने की जलन से नजात अता फरमाएगा। तमाम भाई बहनों ने आज बड़ी इंटरेस्ट ली, बच्चों ने, बच्चियों ने। आज हमें कॉल्स आई, रमीज़ ने कॉल की, हुमैरा सईद ने कॉल की, हदिया ज़हरा ने हमें कॉल की, और आज एक हमारी नई कॉलर हैं वजीहा ज़हरा जो असद मलिक की साहबजादी हैं, इन्होंने हमें कॉल की थी। वजीहा ज़हरा, उनका नाम लेने में मुझसे गलती हो गई थी, मदीहा नहीं बल्कि वजीहा, वजीहा ज़हरा इस बच्ची ने कॉल की थी। और इसी तरीके से बहन सरबत की कॉल आई थी, सैयद सफ़ीर हैदर शाह की कॉल आई जिन्होंने अपना प्लाजा बेचने के लिए कहा है, दुआ उनको बता दी गई। हाजी करीम ने हमें इंग्लिश में कॉल की। बहन आबदा हुसैन ने मेहरबानी की, उन्होंने एक बेवा के 6 बच्चों की खिदमत के लिए $200 का वादा फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, आज की हद तक अपने मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी को इजाज़त दीजिए। आपकी इंटरेस्ट का, आपके तामुन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा अल महदी टीवी के लिए $1 पर डे। आज मैंने अभी रास्ते में कॉफ़ी ली थी, $1.75 की कॉफ़ी मिली थी, 1 क्वार्टर वापस हुआ है, तो $2.25 की तो स्मॉल कॉफ़ी है। $1 कुछ नहीं है। मोहम्मद व आले मोहम्मद के इस चैनल के लिए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम पर कायम होने वाले इस टीवी के लिए, इस नस्ल बचाओ मुहिम के अलमबरदार के लिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद के उलूम के इस तर्जुमान के लिए $1 पर डे अगर हर मोमिन दे दे तो इंशाअल्लाह यही टीवी चैनल डिश नेटवर्क पे भी काम कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम के ख़त्म करने के बाद कुछ अहले खैर आगे आए, जो उधार हमने देना है वो भी अदा करें, और कम से कम स्पॉन्सर कर दें अपने मरहूमीन के लिए। हम उनके मरहूमीन के नाम टिकर के तौर पर पूरा महीना चला देंगे अगर वो हमारा 1 महीने का खर्चा बर्दाश्त कर ले। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल 7:30 बजे आपका ये खादिम दोबारा हाजिर खिदमत होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ नासिर।